Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for the Scientist B examination, specifically for non-medical scientist post, which is going to be conducted in about 2 to 3 months. So this video is the most requested video by all of you. So I will let you know what are the tips you have to follow and what a strategy should be looks like if you want to qualify this examination, like written examination, because the first step is to clear the written examination and then only you will be eligible for the interview round. So this written is the foremost step you have to clear, and that too with flying colors. So how you gonna do that? So without further a delay, let's start the video. But I request you to do like, share and subscribe the channel to make me feel motivated, because it takes a lot of efforts to record a video as I am working. So do understand the efforts of every educator. It's an humble request. And also don't forget to like, because you people watch and don't hit the like button. So it's again a request to do like the video. Now without wasting a single second, let's start the video. So what I gonna discuss in today's video, I will let you know the complete selection blueprint that you have to follow if you want to confirm your selection. Now we will solely focus on written examination, plus we will little bit focus on the interview strategy, and I will make a detailed video on this interview strategy, because firstly we have to focus on the written examination. So I will cover it, but I will make a detailed video after some time. Now what are the detailed syllabus we are having for the recruitment of Scientist B, what are the suggested books, and what should be your plan? So as you know that it is a group A gazetted officer post. This is an entry level scientist. I have already explained this in my very first video, that what are the different levels of scientist. So this is the entry level, like B is the starting level position, like it is a group A and it has a level 10 pay job. Now basic focus is on public health, epidemiology and research design. So these three topics are very important, because the ultimate role of, or the objective of ICMR for recruitment of scientists is that they focus mainly on public health, epidemiology, like any outbreak, any disease outbreak, and what should be the research designed to overcome it. So I have mainly focus this in three different headings. Now as you all know, examination pattern consists of 100 MCQs, 100 MCQ आपको मिलेंगे, and again इसमें negative marking है 0.33. You will lose 0.33 if you attempt a wrong question. Then what's the point? You only need to attempt the very short questions. Don't take a risk, because you will lose 0.33. It's a huge amount. अगर आपको first level clear करना है, that's the main hurdle to become eligible for the second round, then you can't take risk. And the duration you will be getting is only 1.5 hours. 90 minutes आपको मिलेंगे. उस 90 minutes में आपको 100 MCQ solve करने हैं. And as the syllabus एज पर दी सिलेबस, यू नो कि इसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सारे क्वेश्चंस भी आएंगे. सो डोंट डू लाइक इन अदर एग्जामिनेशन यू प्रोबेबली यू आर डूइंग कि एक MCQ अगर वो मैथ से रिलेटेड, एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, नंबर सीरीज है, आप उसे सॉल्व करने में लग गए हैं, एंड यू आर अवॉइडिंग ऑल योर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर्स होते हैं, जो कि आप लेस देन अ मिनट में सॉल्व कर सकते हैं. सो यहाँ पे एक बल्ब जला के मैं बताती हूँ कि टिप ये है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है. अगर मुझसे कोई पर्सनल सजेशन पूछे, सो आप लाख प्रिपरेशन कर दे, इफ़ यू हैव लाइक डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट if you are not attempting the examination, like the required time for any examination is, even if it is 90 minutes or even if it is 3 hours,
So if you are not attempting that examination in a proper strategic way, then you're gonna lose it. I can bet. अगर उस 90 मिनट लेट से, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए हमें 90 मिनट्स मिलेंगे, उस 90 मिनट्स में भी अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़े कि नहीं मुझे ये आता है मैं इसको सॉल्व करके ही रहूँगा, क्योंकि आप यहाँ देखिए 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स है, क्या आपके पास 1 मिनट भी है एक क्वेश्चन के लिए? नो। तो आपको क्या टाइम वेस्ट करना चाहिए? आपको ऐसे क्वेश्चंस पिक करने हैं जो तुरंत क्वेश्चन का एक लाइन पढ़ा, ऑप्शन जो 4 है उनमें से पता चल गया कि सी है, डी है, बिकॉज यू आर ऑल्सो हैविंग नेगेटिव मार्किंग। प्रेशर में ड्यू टू लैक ऑफ टाइम यू माइट कमिट अ मिस्टेक वाइल कैलकुलेशन के टाइम पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो अवॉइड हैवी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। ये की टिप हो गया, टाइम वेस्ट नहीं करना है जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में। रीजनिंग है, एक बार देख के पता चल रहा है कि बन सकता है तो बनाओ, नहीं तो साइंस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, अपने सिलेबस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, सीधी बात। नाउ नेक्स्ट पार्ट। सो जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक, एपिडेमियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एंड डिजीज़, बायोएथिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश, एंड ऑल्सो लाइक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी बिल्कुल होंगे। सो ये तो रहा मेजर आपका जो कोर सब्जेक्ट इंक्लूड करता है ICMR एग्जामिनेशन के लिए। नाउ व्हाट आर द सब टॉपिक्स यू विल बी लाइक आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। सो इनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन में आएंगी? सो दिस इज एज पर द ट्रेंड, PYQs को देख के, एंड ऑल्सो द वेरियस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय ICMR फॉर लाइक सिमिलर ऑन दिस सिमिलर काइंड ऑफ सिलेबस पे जो अलग अलग एग्जामिनेशंस होते हैं। आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दोज एग्जामिनेशन पेपर, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन विल बी लाइक अबाउट 20 to 25 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। इतने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, या इतने मार्क्स के क्वेश्चन, क्योंकि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है बायोस्टैटिस्टिक्स से। सो यहाँ पे यू कैन सी दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट इज बायोस्टैटिस्टिक। Apart from biostatistic, research methodology, this is very 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 important. After that, diagnostic test validity. Why it is important? This is important because ICMR क्या है? ICMR क्या बताता है? मेडिकल रिसर्च, डायग्नोस्टिक, एपिडेमियोलॉजी, डिजीज आउटब्रेक। तो वो सबको डिजीज का कैसे पता चलता है? आफ्टर द डायग्नोस्टिक पार्ट। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट के वैलिडिटी। अब टेस्ट के वैलिडिटी मतलब कितने टेस्ट होते हैं? रैपिड टेस्ट होते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस पे टेस्ट अलग होते हैं, सेरोलॉजिकल टेस्ट अलग होते हैं। सो यू हैव टू मास्टर ऑल ऑफ दैट। अगर आप सोचते हैं ये आपके अपकमिंग फ्यूचर के लिए भी, इफ़ यू गॉट सिलेक्टेड fortunately, then you will be posting in different like medical colleges, medical institutes. So आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। Now communicable diseases, and not just only communicable diseases but also नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, एंड बायोएथिक्स एंड न्यूट्रिशन। अगर एकदम प्रिसाइजली सिलेबस में जाना है, दिस इज फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट PDF। 100 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द फील्ड और डिसिप्लिन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी हर एक, अगर आप PhD कर रहे हैं तो आपके कोर्स वर्क में आपने फॉर श्योर पढ़ा होगा। बेसिक बायोस्टैटिस्टिक, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डायग्नोस्टिक एंड स्क्रीनिंग टेस्ट, बायोएथिक्स, कम्युनिकेबल डिजीज, NCD, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे मैंने वो वाला पार्ट हटा दिया है। कौन सा वाला? जो जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला है, मैंने यहाँ पे आपके सब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो इंक्लूड किया है, वो लाइंस को इंक्लूड किया है। सो यहाँ पे देख लो कितने क्वेश्चंस रफली आएंगे, यानी इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब इसमें मान के चलो 5-10 क्वेश्चंस आपके लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इससे भी हो सकते हैं। सो वेयर यू कैन स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स, फ्रॉम वेयर? फ्रॉम योर सब्जेक्ट। किसी भी एग्जामिनेशन में हमारा जो कमांड होता है वो हमारे सब्जेक्ट में ज़्यादा होता है। सो ये भूल जाओ, 10 नंबर का प्रिपेयर करने के चक्कर में अपना 90 नंबर
नहीं गंवाना है. You don't have to lose your 90 marks for preparing only just for 10 marks, जो कि वो भी श्योर नहीं है किस टाइप का रीजनिंग आएगा, किस टाइप का जीके आएगा. जीके उतना स्ट्रांग नहीं होता है साइंस स्टूडेंट का. लाइक इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, बट अगर हम जनरल बेसिस पे बात करें तो हम उतना जीके, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है रेगुलरली, हमारे किसी एग्जाम में जीके पूछता नहीं है. वी आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर आवर सब्जेक्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम आवर सब्जेक्ट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें. बट जीके हम उतना प्रिपेयर नहीं करते हैं. नाउ रिसर्च मेथडोलॉजी के जो की टॉपिक्स है वो मैं यहाँ पे इंक्लूड करी हूँ. So you have to prepare about the different study designs, including cross-sectional studies, case controls, cohort, and randomized control trial, sampling techniques. What are the different kind of sampling techniques? Bias and confounding, randomization and blinding, validity and reliability. ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है. Now again I am saying that I will be posting like the next day the complete syllabus in अ वेरी वेरी डिटेल मैनर, क्योंकि ये वीडियो में अगर मैं सिलेबस को ये बहुत लंबा डिस्कस करने लग गई तो ये वीडियो ही अकेला बहुत लंबा हो जाएगा. सो आई विल पुट दी सिलेबस वीडियो इन अ वेरी ग्रेट डिटेल कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, देन आपको ईजी होगा. सो रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए जो मेरा रिकमेंडेशन है, इट इज़ CR कोठारी. You all must be aware about this book if you are doing PhD or if you have already done it. So आपको पता होगा कोर्स वर्क में CR कोठारी is a very good book for research methodology and different topic. And also if you are doing a research in medical field or let's say any other field, then also you will be able to solve some questions related to like the experiment techniques, sampling techniques. Like these are the very very basic steps of research, so you should have a knowledge about this. Now next part is biostatistic. So without this biostatistic you can't do research, because you can't analyze your data, and then if the data is unanalyzed, if the data is lacking the actual biostatistical analysis, then you cannot say that you are 100% sure. अगर आप कोई ड्रग दे रहे हो किसी पेशेंट को, 100 पेशेंट को, एंड यू आर सेइंग दैट दिस ड्रग इज़ 100% इफेक्टिव without any such biostatistical tool analysis, then nobody will buy it, because with the help of different biostatistical tools it is very very easy to like decide the confidence level of whatever hypothesis you are proving. So the basic biostatistic includes the central tendency, that includes mean, median, mode, standard deviation, variance, the different kind of the mean comparison test like Z test, T test, chi-square, F test, p-value. P-value, what is p-value? What is the interpretation if the p-value is less than 0.005? What is the like meaning of if the p-value is more than the required confidence level? So every such detail is important. What is confidence interval? Why do we write 0.005? what is 0.01? ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं? sensitivity and specificity. So these are all parts of biostatistic. Epidemiology concept, it means incidence versus prevalence. कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेशन में कौन से डिजीज़ देखने को मिल रही है, दैट इज़ prevalence. Apart from that, relative risk and odds ratio, attack rate and CFR. I have like solved some questions for you related to CFR. What is CFR? Screening criteria, population attributable risk. So all these topics are important from this epidemiology concept. Now communicable disease focus. So what does CD includes? जितने भी communicable diseases हैं वो सारे important है, but mainly questions देखा जाए तो tuberculosis, HIV, AIDS, मलेरिया एंड डेंगी, वायरल हेपेटाइटिस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR पे क्वेश्चंस आ रहे हैं. नॉन कम्युनिकेबल पे देखा जाए तो डायबिटीज़, our country is becoming the like not becoming the, it is already a diabetic capital country. Hypertension like high BP,
and all those criteria which are responsible for this disease, the main treatment options, what are the currently available treatment options, cancer, the most fatal disease, CVD, cardiovascular disease, lifestyle risk factors, all these are from NCD. Bioethics. What is informed consent? What are the steps which are taken into consideration while conducting a like clinical और लेट्स से प्री क्लिनिकल ट्रायल, ये सारी चीज़ें. क्लिनिकल ट्रायल फेजेस, व्हाट आर द डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल फेजेस अवेलेबल. एथिक्स, एथिकल कमिटी का अप्रूवल क्यों लेना पड़ता है, कैसे लेना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एंड डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें क्या हैं. तो बायो एथिक्स इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आप कोर रिसर्च में जा रहे हो. सो यहाँ पे एक बात, दूसरा एक बल्ब जला के बता देती हूँ, हालांकि मैंने बहुत सारे बीच में बल्ब जला दिए लेकिन बनाया नहीं था. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ रिसर्च से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि आप अगर साइंटिस्ट बी में सिलेक्ट होते हो तो अल्टीमेटली आपको वो चीज़ें करनी है, तो वही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, वही चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है कि वो चीज़ें आपको आए, तभी आप उस जॉब को जस्टिफाई कर पाओगे. सी यहाँ पे जो मैंने लिखा है, CR कोठारी इज़ फॉर रिसर्च मेथडोलॉजी, BK महाजन इज़ फॉर बायोस्टैटिस्टिक, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग द बुक which I have preferred for biostatistic is खान एंड खानम. बहुत ही पतली सी एक बुक है, बट दैट इज़ very very sufficient for biostatistic as per my opinion. You can refer as per your own convenience level, कौन सी बुक आपको समझ आती है. गॉडिस की एक बुक है एपिडेमियोलॉजी की, वो आप रेफ़र कर सकते हैं. नाउ यू शुड अटेम्प्ट सम मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट नहीं दे सकते हो तो एटलीस्ट रेगुलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एंड फॉर दिस यू कैन ऑल्सो रेफर माई चैनल. जितना ज़्यादा आप मुझे लाइक एंड सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मैं वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है. अच्छा रिस्पांस आने से लगता है कि और वीडियोस बनाओ, और हेल्प हो रही है जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनकी. सो डू मेक मी फील मोटिवेटेड सो दैट आई कैन प्रोवाइड मोर एंड मोर वीडियोज़. इंटरव्यू स्ट्रैटेजी जो है वो, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो जनरली इफ़ यू आर ऑलरेडी अ PhD और इफ़ यू आर डूइंग इट, और लेट्स से इफ़ यू आर ओनली अ मास्टर, देन यू विल बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन योर थीसिस in just a minute or so, or design public health projects, how you can design some projects related to different kind of important communicable or non-communicable diseases, how you can interpret your data logically with using different biostatistical tool, how you can use your critical evaluation for conducting any such clinical trial, let's say preclinical trial in a particular geographical location, depending upon the different factors and different outcomes of a survey, how you can use your own mind. So कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं. डोंट इग्नोर बायोस्टैटिस्टिक. इफ़ यू इग्नोर इट देन सो सॉरी फॉर यू. नो मॉक प्रैक्टिस, मॉक नहीं मिल रहा है कहीं. सो इफ़ यू वांट मी टू प्रोवाइड अ मॉक टेस्ट देन आई विल ऑल्सो प्रोवाइड इट. I will try to provide it as soon as possible. And over reading without application, कोई भी चीज़ को blindly मत पढ़ते जाओ, बस थ्योरी 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 रट लिया, कुछ नहीं होगा. एप्लीकेशन पर्पस देखो, कोई अगर डिजीज़ का कोई टेक्निक पढ़ रहे हो तो उस टेक्निक के पीछे प्रिंसिपल क्या है और वो टेक्निक क्यों ज़रूरी है, डायग्नोस्टिक क्यों ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें डायग्नोस नहीं होंगी तो ट्रीट नहीं होंगी. सो इस तरह से रिलेट कर करके पढ़ो. नो इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये तो चलो बात की बात है, पहले आपका थ्योरी निकलना चाहिए. सो फाइनल 30 डेज स्ट्रैटेजी क्या है. फुल रिवीजन करो टॉपिक का. अगेन आई एम रिपीटिंग सेकेंड, इसी के जस्ट बाद में एक वीडियो डालेंगे जिसमें डिटेल्ड सिलेबस में बताऊंगी आपको, जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है. नाउ 3 to 4 मॉक टेस्ट पर वीक. स्ट्रेंथन वीक टॉपिक्स. जितना क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व करो, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है. देखो फिर किसी भी एग्जामिनेशन का जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होता है, लेट सपोज ICMR का ये पोस्ट है. सो ICMR के और भी तो एग्ज़ाम्स होते हैं. लेट सपोज ICMR का साइंटिस्ट B हो रहा है, ICMR का साइंटिस्ट C होता है, एंड ऑल्सो देर आर डिफरेंट मोड्स लाइक नॉन मेडिकोज के लिए होता है, मेडिकोज के लिए होता है. तो इफ़ यू विल कंपेयर द सिलेबस, मेडिकोज एंड नॉन मेडिकोज के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. सो यू कैन डू दैट.
अगर नॉन मेडिकल और मेडिकल का, अगर आप मेडिकल के हैं नॉन मेडिकल के नहीं हैं, तो दोनों के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो, क्योंकि कुछ कुछ सिलेबस तो सेम है, ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, तो इसके क्वेश्चंस आपको काम आएंगे। मेरा हमेशा एक की टिप होता है कि अपने सिलेबस से रिलेटेड अगर और भी कोई एग्जाम्स होते हैं, डू प्रैक्टिस दी क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जामिनेशन के जो PYQs होते हैं दैट आर दी मोस्ट यू कैन से ऑथेंटिक सोर्स होते हैं ये एनालाइज करने के लिए कि यस यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ के की टिप से क्या सीखा आप लोगों ने, मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ, किसी भी एग्जामिनेशन का टॉप पेपर पढ़ो, चाहे वो ICMR कंडक्ट करा रहा हो, RCB कंडक्ट करा रहा हो, DBT करा रहा हो, कोई भी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी हो, सिलेबस अगर यही मिलता जुलता है, उसके क्वेश्चंस देखो, वन लाइनर्स क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, कितना डिटेल पूछ रहा है, एंड उसके अलावा फिर मेरे वीडियोस फॉलो करो, डू सब्सक्राइब इट, आई विल लेट यू नो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू hit the like button and subscribe button.